Good morning, students. So, today we are going to understand the two things which are control and coordination. This is a new chapter, and you can see I have shared the screen. Firstly, we will know about the meaning of control and coordination. Control and coordinations are the function of the response against stimulus and hormones. That means we know that we do particular type of response. For example, if as a teacher I ask questions in the class, the student, if they know the answer, they raise their hands and also they tell me the answer. So this was a response given by the student. My question was a stimulus for them, and the answer was the response by them. And there is another coordination which is done by hormones. We know that we have various glands in our body, and that glands produces hormones. So both nervous system and hormonal system together work for control and coordination. Animals have nervous system for this act. Plants also show responses by using different mechanisms. Plants control and coordination is done by showing responses, and these responses are basically in the form of movements. These movements can be tropic movements, which are related to the growth of the plant, and these movements can be the nastic movements, which are not related to the growth of the plant. So topics are written in this. You can see the screen is shared to you. Tropic movements in plant. We will start with the tropic movements in plant because it is easy thing to start with. Then introduction of plant hormones. That means few plant hormones are there. 5 plant hormones are given in your book. So we are going to introduce that. Their function, their actions. Control and coordination in animals. Then we will move to control and coordination in animals. Nervous system, voluntary nervous system and involuntary reflex actions. So we are going to start this. Although NCRT has started with animal nervous system and animal control and coordination, voluntary and reflex action, but as you can see, the screen is shared. Here it is starting with the plant control and coordination. तो आप इस चैप्टर में ये समझेंगे कि किस तरह से सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स, सारे पौधे और जानवर जो हैं वो अपने ऐसे रिस्पॉन्स शो करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट से उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं, स्टिमुलस मिलते हैं, जिनसे वो जिनके रिएक्शन में वो कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। आप देखते हैं पौधा, एक बीज अगर हम सो करते हैं, सीड में बोते हैं, तो वो किस तरह से धीरे धीरे उसमें से पेड़ निकलता है, वो ग्रो करता है। और एनिमल्स भी इसी तरह से आप देखते हो, एनिमल्स कितनी सारी मूवमेंट शो करते हैं। कुछ एनिमल्स दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, कुछ एनिमल्स रात के वक्त एक्टिव होते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं, खाते हैं। तो एनिमल्स भी स्टिमुलस से दिन है रात है ये पहचान कर अपने काम करते हैं। तो इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर, दोनों के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए होता है और हार्मोन्स का सिस्टम होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट ये मूवमेंट है प्लांट का रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्रेजेंट इन सराउंडिंग। कोई भी उसके वातावरण में कुछ भी ऐसा वो महसूस कर रहा है पौधा, तो वो उस वो लेकर उस स्टिमुलस को अपनी कुछ ग्रोथ शो कर सकता है। और ग्रोथ शो करने की वजह से वो उसके अपने पार्ट्स को ग्रो करेगा, या तो स्टिमुलस की तरफ ग्रो करेगा या स्टिमुलस से दूर ग्रो करेगा, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि पौधा एक ओर को चल रहा है, एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि पौधा का पर्टिकुलर पार्ट किसी स्टिमुलस की तरफ मूव हो रहा है,
और जिस स्टिमुलस की तरफ मूव होता है उसी से उसका ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। जैसे अगर लाइट की तरफ पौधा झुक रहा है, अपने आप को ग्रो करा रहा है, तो वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाती है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। एग्जाम्पल, जो स्टेम है बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट एंड रूट बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर। जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा, सूरजमुखी खिलता है तो वो सूरज की तरफ अपना आप को करता है, डायरेक्शन ओरिएंट करता है, और फिर वो खिलता है अच्छे से। छाया में वो थोड़ा मुरझाया हुआ रहेगा, पर जहां धूप होगी उसका अपने आप डायरेक्शन धूप की तरफ हो जाएगा, इसीलिए सूरजमुखी कहते हैं, सूर्य की तरफ मुंह मुंह करता है वो। रूट बेंडिंग टूवर्ड द लाइट, आपने देखा होगा पौधों की जो तने हैं वो लाइट की तरफ बेंड होते हैं, और जो रूट्स हैं वो लाइट से दूर बेंड होती हैं, यानी वो जमीन में जाती हैं। तो इस तरह के मूवमेंट्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, जहाँ पर स्टेम की तो जो तना है वो टूवर्ड्स द लाइट मूव कर रहा है। तो स्टेम इज बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, मतलब यहाँ पर लाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव। और अगर रूट लाइट के अवे जा रही है तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इज शोन बाय रूट्स, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है लाइट के, वो जमीन के अंदर जाती हैं, और लाइट पॉजिटिवली जाती है जमीन की तरफ, सॉरी लाइट की तरफ जाती है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, अगर पौधे कुछ केमिकल्स की तरफ मूव करते हैं तो हम उन्हें कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लावर में पॉलिनेशन होता है और फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है कार्पल पिस्टल। अगर फीमेल पार्ट के ऊपर मेल गैमेट्स प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन रहता है, वो आता है इसके स्टिग्मा पोर्शन पे। ये एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल पार्ट है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ये पॉलन ग्रेन है। और सेंटर में इसमें रीजन होता है स्टाइल, तो पॉलन ग्रेन है, वो लैंड करा है स्टिग्मा पे, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है तो वो पॉलन ग्रेन को जगह देता है। तो पॉलन ग्रेन उस स्टिकीनेस से, उस शुगरी सब्सटेंस से थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेकर, जो शुगरी सब्सटेंस ओवरी ही रिलीज कर रही है। तो बीच का जो ट्यूब है वो स्टाइल है, STYLE। और स्टाइल में जो शुगरी सब्सटेंस आता है वो ओवरी से आता है, ओवरी से रिलीज कर रही है। तो ओवरी से वो डिफ्यूज होता हुआ ऊपर को जा रहा है, और उसको यहाँ पर स्टिग्मा पे वो केमिकल्स, क्योंकि एक कंटिन्यूस ट्यूब है तो ऊपर केमिकल्स आ रहे हैं। पॉलन ग्रेन का जो टिश्यू है, सेल है, वो इसको अब्सॉर्ब करते करते केमिकल्स को, केमिकल्स रिलीज्ड बाय द ओवरी आर एब्सॉर्ब बाय दिस पॉलन ग्रेन, और वो केमिकल्स को एब्सॉर्ब करते हुए नीचे एक ट्यूब बना रहा है जिसे पॉलन ट्यूब कहा गया है, और वो ओवरी में जाकर जो एग सेल है, ओवरी के अंदर एग होता है, एग सेल को फर्टिलाइज करती है। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होना, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी इन द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये पॉलन, पॉलन ग्रेन ने जो ट्यूब बनाई है उसे पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब जैसी है जो नीचे ओवरी तक आती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसी को कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, मूवमेंट ऑफ पॉलन, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे, डायग्राम से। नाउ जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। जब पौधा जमीन की तरफ जाता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है, तो जिसकी में रूट्स जो पार्ट होती हैं पौधे की, वो जमीन के अंदर जाती हैं, तो ऐसे मूवमेंट को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो रूट्स ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द जियो, जियो मींस अर्थ, so roots are showing positive geotropism, and shoots, shoot means stem, stem generally grow negatively, that means it is moving away from the earth,
away from the soil, opposite direction. So it is negative geotropism. Now hydrotropism, movement of plant parts in response to water. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई सीड होता है, उसको हम जब जमीन में लगाते हैं तो वो आसपास से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है, पानी अब्सॉर्ब करता है और अपनी रूट्स को ग्रो कराता है. तो movements of plant parts responds to the generally roots towards the water, जैसे growth of roots towards the water is called hydrotropism. Tropism is the growth movement in which the plant part grow. अपने अंदर डिवीजन करते हैं प्लांट के टिश्यूज और वो ग्रो करते हैं. तो हमें ऐसा लगता है वो शो मूवमेंट शो कर रहे हैं और जिस स्टिमुलस की तरफ वो ग्रो कर रहे हैं उन्हीं को आगे प्रीफिक्स लगाकर ट्रॉपिक मूवमेंट्स बनती हैं. थिग्मोट्रोपिज्म यानी टच के रिफ्लेक्स में, द रिफ्लेक्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ टच. अगर प्लांट का कोई पार्ट किसी इससे कोई हिस्सा उसका किसी और स्ट्रक्चर को छूता है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है. जैसे छुई मुई का प्लांट है, जब उसको टच किया जाता है, टच मी नॉट प्लांट, मोमोसा प्लांट, तो उसको टच करते ही उसके लीव्स क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं. तो इस तरह की रिस्पॉन्स को थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं. थिग्मो ट्रॉपिज्म की जगह यहाँ पर अप्रोप्रिएट टर्म होगा नेस्टी, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है. तो यहाँ मैं इसे चेंज करना चाहूंगी. थिग्मोट्रोपिज्म की जगह दिस इज अ नेस्टिक मूवमेंट, दैट मीन्स नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ. और अगर थिग्मोट्रोपिज्म आता है तो वी हैव टू राइट दैट इन दिस we will not give the थिग्मोनेस्टी आता है, then we will give the example of touch me not. एंड थ्रिग्मोट्रोपिज्म आता है तो वी विल गिव द एग्जांपल ऑफ टेंड्रिल ग्रोथ. क्योंकि आपने देखा है कोई मटर का पौधा है या कोई ऐसा पौधा है, कद्दू की बेल है या ककड़ी की, तो वो टेंड्रिल्स बनाती हैं क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक होती है. तो अब वो सीधे तो खड़े नहीं हो सकती, तो उनके जो कुछ पत्ते सीधे रहते हैं और उनके कुछ लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं करली हुक जैसे स्ट्रक्चर में, और हमें उसके साइड में एक सपोर्ट लगाना पड़ता है जिसके अराउंड वो टेंड्रिल ग्रो कराता है. तो उसको हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म. तो थिग्मोट्रोपिज्म का जब भी एग्जांपल आएगा तो यू विल बी गिविंग द एग्जांपल ऑफ टेंड्रिल. टेंड्रिल ग्रोथ, TENDRIL, tendril growth. So I hope it is clear. Tendril, the growth of tendril around the support. The example of थिग्मोट्रोपिज्म. यहाँ पर थिग्मोट्रोपिज्म नहीं, यहाँ पर थिग्मोनेस्टी आएगा. बाकी सबके डायग्राम सही हैं, बट इट विल बी नेस्टिक मूवमेंट क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है पौधे के लीव्स की, बस ग्रोथ नहीं हो रही है. तो इट इज अ थिग्मोनेस्टी, NAST. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा हो. Now, thigmonastic movement or thigmonasty movement, because it is not related to growth, not growth dependent. Here the leaves just are folding, not no growth is shown here. So therefore it is a nastic movement. Otherwise, in the first diagram, you can see that the leaves are bending towards the light. The shoot is bending, so it is phototropism. And when the roots are growing towards the earth, then we are saying that it is a geotropism. And when the stem is, the roots are growing towards the earth, geotropism. Or we can say phototropism, maybe the roots are negatively phototrophic and the stem is positively phototropic. This image is showing two things. The stem is going towards the light, so it is positive phototrophic, and negative phototrophic is the root, negative phototrophic.
phototrophic, and the stem is positive phototrophic. I hope आपको क्लियर हो गया होगा ये. नाउ वाटर की तरफ आप देख रहे हो नेक्स्ट इमेज में कि रूट्स ग्रो हो रही हैं, so it is hydrotrophic, and the last one is thigmonastic. Hydrotrophic, and the last one is thigmonasty. Thigmonastic. Thigmonasty भी आप बोल सकते हो. That से रिस्पॉन्स देना विदाउट एनी ग्रोथ. नाउ हम प्लांट हार्मोन्स की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन. प्लांट्स में डिपेंड करती है कि ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है ग्रोथ प्लांट्स की. प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स भी बोलते हैं. These are organic substances which are synthesized in minute quantities in one part of the plant body and transported to other part where they show specific physiological process. तो ये डेफिनेशन हो गई हार्मोन्स की, प्लांट हार्मोन्स की, कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं बहुत ही कम अमाउंट में किसी एक प्लांट के पार्ट में, और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम के फ्लो मूवमेंट. जो पानी और फूड जाता है उसी के थ्रू, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि इन्हें बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस करने होते हैं. तो अब लिस्ट है आपके पास प्लांट हार्मोन्स की. फाइटोहॉर्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड उनका एक्शन. तो आप देख सकते हो एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको प्लांट हार्मोन्स के नेम्स दिए हुए हैं और उनके कौन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्रमोटर हार्मोन्स है, कौन से इनहिबिटर हार्मोन्स है, उनकी कैटेगराइजेशन करी हुई है. क्योंकि प्लांट हार्मोन दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, these all three are growth promoters, and they do. Auxin is involved in stem elongation, gibberellins is involved in growth of stem, cytokinins is involved in the cell division. इथिलीन और एब्सिसिक एसिड वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, और ये विल्टिंग ऑफ लीव्स करते हैं, फ्रूट राइपनिंग करते हैं. तो इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली फ्रूट राइपनिंग. यहाँ क्रॉस में लिखा हुआ है पर आप कंफ्यूज नहीं हो. एंड एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव. जब हम विल्टिंग क्या होती है, जब भी कोई पौधा वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहा होता है, उसको पानी की बहुत कमी होती है, तो उसके लीव्स सूख थोड़े से जाते हैं, मुरझा थोड़े से जाते हैं, ताकि वो जितना पानी उसको मिल रहा है उतना वो अपने अंदर तक रखें. और उस स्टोमेटा, क्योंकि ज्यादा ओपन होंगे तो स्टोमेटास बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे, हीट वैसे ही ज्यादा है, तो वो जो मुरझाता है, सिकोड़ता है अपने पौधे को, विल्टिंग कराता है, तो उससे स्टोमेटा और उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे उसकी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए वो कोप कर सकता है. तो एब्सिसिक एसिड एक प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन भी है इसी वजह से, क्योंकि वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है, साथ में बिल्डिंग ऑफ लीव्स कराता है. इथिलीन आपने देखा होगा, कोई आप पका हुआ फ्रूट किसी कच्चे फ्रूट के साथ रख दो तो वो कुछ दिनों में वो भी पक जाता है, तो क्योंकि जो पका हुआ फ्रूट है वो इथिलीन नाम की गैस निकाल रहा होता है, जो कि फ्रूट राइपनिंग गैस है, और वो दूसरे को भी राइपन करा देती है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का टॉपिक अगर हम देखें तो इसमें नर्वस सिस्टम की बात होगी और एंडोक्राइन सिस्टम की भी इसमें बात होगी. तो नर्वस सिस्टम आपका हेल्प करता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को कैरी करने में. नर्वस सिस्टम बना किससे होता है? नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, एंडोक्राइन सिस्टम्स.
तो इन सब ये सब इन्वॉल्व है नर्वस सिस्टम के उसमें, क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज आपको क्या करेंगे, मस्कुलर टिश्यूज विल हेल्प इन योर एक्शंस। आप कुछ भी कर रहे हो, अभी मैं बोल रही हूँ आपको, क्लास दे रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आई एम यूजिंग माय फेशियल मसल्स, आई एम यूजिंग माय वोकल कॉर्ड्स, and I'm using my hands to drag the scroll down. That therefore, nervous system is helping us in producing actions with the help of muscular tissues. Muscular tissues move कराता है nervous system. Endocrine system hormones का system है, ये hormone produce कर रहा है. Nervous system आपको पता ही है कि पूरे nervous fiber से ये बना है. Nervous system is composed of two parts mainly: central nervous system, brain, that contain brain and spinal cord; peripheral nervous system, that contain all the nerves associated with the central nervous system. There are two division. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आप भी देख रहे हो आपकी बॉडी में सेंट्रल पोजीशन में है, बीच में है बिल्कुल, ब्रेन आपका है, और उसी से कंटिन्यूड स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन में जाती है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से निकलती हुई वो नर्व का सेट है जो आपके फेस में, नेक में, रीजन में, पूरे में फैला है. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी कुछ नर्व्स निकालती है जो बॉडी में फैली हुई है. तो वो एसोसिएटेड नर्व्स हैं, ऑल द एसोसिएटेड नर्व्स विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन की नर्व्स जो ब्रेन से निकलकर बाकी पार्ट्स में यानी फेस में आ रही हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जो बॉडी में जा रही हैं. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है. न्यूरॉन्स आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की. न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी होती है, फर्स्ट पार्ट. देन डेंड्राइट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे फाइबर्स उसमें मैसेज लेकर आते हैं. एक लॉन्ग उसका फाइबर होता है एक्सॉन, और लास्ट पार्ट होता है नर्व एंडिंग. आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आपको दिख रहा है, 9th में भी आपने नर्वस टिश्यूज जब पढ़ा था एनिमल टिश्यूज में, तो ये डायग्राम आपको पता है, क्योंकि इसमें छोटे से फाइबर्स जिन्हें डेंड्राइट्स बोला जाता है, ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे मार्क कर रखा है. एक लंबा फाइबर जो मैसेज को इधर लेकर जा रहा है, दिस इज एक्सॉन, ये भी मार्क हो रहा है, जो कि टेकिंग मैसेज अवे. एंड यहाँ छोटे छोटी सी बटन्स जैसे लास्ट में एक्सॉन के एंडिंग्स हैं, जिन्हें नर्व एंडिंग बोला जाता है. तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है. ये आप बनाएंगे डायग्राम जब आप इसे पढ़ेंगे. नर्वस इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है बॉडी में, व्हाट इज द वे इन विच नर्वस इम्पल्स यानी मैसेज, न्यूरॉन्स मैसेज कैसे ट्रैवल कराते हैं. डेंड्राइटिक टिप एक कोई भी स्टिमुलस रिसीव करती है, और तब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है उसके अंदर, न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर. जैसे ही कोई स्टिमुलस डेंड्राइट की टिप ने महसूस किया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल मैसेज बनता है जिसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं. This impulse travels from the dendrites of the cell body and along the axon to its end. ये impulse फिर सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन के अंदर चला जाता है. एक्सॉन आपको पता है लंबा फाइबर है, एक्सॉन उसको दूर लेकर जाता है. एंड एक्सॉन एंडिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उनके जंक्शन को क्रॉस करके दो न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन्स को वो केमिकल्स रिलीज करके उसके अंदर भी सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करा देते हैं. तो इस तरह हम कहते हैं कि नर्वस इम्पल्स ट्रैवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. स्टेप्स हो गए कि डेंड्राइटिक टिप ने स्टिमुलस रिसीव किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करी. That impulse travels from dendrite to the cell body and along the axon, axon के थ्रू गई impulse, and axon ending में कुछ ऐसे chemicals हैं जिन्होंने साइनेप्स को क्रॉस किया, जंक्शन को एक न्यूरॉन से क्रॉस करके वो डिफ्यूज हुए और दूसरे न्यूरॉन पे वो अटैच हुए, और वहां पर भी उन्होंने इम्पल्स क्रिएट कर दी. आई होप आपको नर्वस इम्पल्स का ट्रैवलिंग समझ में आ गया होगा. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड से किया हुआ इनवॉलेंट्री एक्शन होता है. इट इज अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस. इट ओरिजिनेट इन स्पाइनल कॉर्ड. इसको स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करती है. जैसे कि आप कुछ गर्म चीज छूते हो तो आपका हाथ उससे हट जाता है ऑटोमेटिकली. जब आप कुछ खाने की चीज देखते हो तो आपके मुंह में पानी आता है. ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं.
न्यूरल पाथवे जो कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को, ये जो पूरा सिस्टम है न्यूरॉन्स का, जो आपको रेड से यहाँ दिख रहा है कि रिसेप्टर से रेड कलर की सेंसरी न्यूरॉन गई और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन है और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस आ रहा है मैसेज और हाथ हट रहा है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, तो इफेक्टर्स आर द मसल्स। इसको न्यूरल पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू मैसेज जाने से होता है। स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन, ये उसका मैकेनिज्म है लास्ट में लाइन में कि स्टिमुलस आपका सेंसरी न्यूरॉन रिसीव कर लिया उसने। यहाँ पर आप देख रहे हो हॉट स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है हैंड, और हैंड में कुछ रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स इन द स्किन जो इस हॉटनेस को, इस हीट को महसूस कर रहे हैं, और फिर सेंसरी न्यूरॉन, ये रेड कलर का फाइबर है, ये लेकर जा रहा है इस मैसेज। द सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसफर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो उसने महसूस करी, उस इंफॉर्मेशन को वो मोटर न्यूरॉन को कैसे भेजेगा। बीच में वो सेंसरी न्यूरॉन एक लंबा सा रास्ता तय कर रहा है और उस न्यूरॉन पे आप देख रहे हो एरो के थ्रू जा रहा है मैसेज, और ये जाकर आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, विल गो इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज भेज रही हैं विच इज गोइंग इन द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन रिले न्यूरॉन, एक छोटी सी न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड की, जो सेंसरी न्यूरॉन इनकमिंग न्यूरॉन को और जो वापस जाती हुई मोटर न्यूरॉन है उससे लिंक करती है। तो रिले न्यूरॉन इज एक्टिंग एज अ relay neuron is acting as a relay for the motor neuron, यानी कि वो मैसेज को, जैसे आप रिले रेस में एक को दूसरे को बैटन देते हैं, जो रेस पूरी करते हैं तीन चार बच्चे मिलकर, तो इसी तरह से सेंसरी न्यूरॉन ने अपनी इंफॉर्मेशन रिले को दी और रिले न्यूरॉन अब उसको पास कर देगी मोटर न्यूरॉन को। द मोटर नर्व फाइबर रिले द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम नर्वस सिस्टम। अब मोटर नर्व फाइबर जो मैसेज मिला है उसको, उसके थ्रू वो इफेक्टर्स तक पहुंचाएगा वो मैसेज, एंड इफेक्टर को मिलकर इफेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और हैंड को हटा देगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। So this mechanism or this action is produced through this pathway in which the parts are receptor in the skin, sensory neuron, relay neuron, and motor neuron effectors. So there are such parts. So number one receptors, number two sensory neuron, number three relay neuron, number four motor neuron, and number five effectors. So five parts we have to tell, five about, and this is the action that stimulus will be received by sensory neuron. Sensory neuron will transfer the sensory impulse to the spinal cord. Then spinal cord will process the stimulus through the relay neuron, and then motor neuron will relay the motor impulses from nervous, relay matlab pass karna, pass the motor impulses from nervous system to effector organs like muscles, and the action is produced. We remove our hand from the hot object so that we prevent our burning, ताकि हमारा हाथ जले ना, इसलिए हम उसे रिमूव कर लेते हैं। हम हॉर्मोन्स इन एनिमल्स है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर कौन कौन से हार्मोन्स हैं और ये कौन कौन से ग्लैंड रिलीज करते हैं, एंड ग्लैंड रिलीज करने के बाद इनके एक्शंस क्या हैं। प्लस ब्रेन का पार्ट भी है कि ब्रेन, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी में इमेजेस दी हुई हैं ब्रेन की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है। डेंड्राइट टिप से मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स ट्रैवल करती है डेंड्राइट से एक्सॉन के थ्रू, एंड एक्सॉन एंडिंग पे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो साइनेप्स को क्रॉस करके नेक्स्ट वाले में भी सेम इम्पल्सेस भेजते हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पांच प्लांट हॉर्मोन्स हैं, जिब्रेलिन्स, ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स, जो अलग अलग काम कर रहे हैं। इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिसमें से पहले तीन ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। एंड देन ये डिफरेंट टाइप्स के ट्रॉफिक मूवमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस आपको दिखा रखी हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, एंड यहाँ पर
there are different kinds of other things which we have discussed कि plant hormones plant movements कितनी तरह की होती हैं. तो I hope आपको ये समझ में आया होगा. With this, I will like to end the class. And read from the NCERT, prepare your notes, and all the best for your studies.